ओके सो मैंने आपको बताया है कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, और मैंने आपको बताया है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, और मैंने आपको बताया है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, राइट? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू पुट एवरीथिंग टुगेदर नाउ। ठीक है, तो ये जो सर सी आ रहा है इसमें एम आएगा क्या? मेरे को सीए का मालूम नहीं है कि सिलेबस क्या है। वो आपको अमन सर ग्रुप पे आया नहीं क्या सिलेबस? नहीं सर, अभी तक नहीं है। आई डोंट नो। सर वो असेसमेंट में एक थोड़ा डाउट है, क्वेश्चन नंबर 8। असेसमेंट तलाश मेरे पास सर है। वो 1 to 2। हाँ सर, मैं आपको प्लस वो एग्जाम्पल वाला पूछ रहा है। भेजा पलाश? नहीं सर, एक मिनट एक मिनट। हाँ ठीक है, अभी भेजना ना, मैं शुरू करता हूँ। ओके सर। So now what we are going to do is we are going to put everything together, okay? And I'm going to tell you the class of problems that we'll be dealing with here. ठीक है ना? Now first, जिसका हम थोड़ा बहुत देख चुके हैं, is the equilibrium problems. जब हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ेंगे, जो अभी से 2-3 चैप्टर 5-4 चैप्टर के बाद है, तब ये इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स पे फिर आएंगे थोड़ा और डिटेल में। लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स आती हैं। नंबर 2 is where we will talk about simple pulley mass systems. Number 3, we'll talk about simple wedge problems. Number 4, we'll talk about problems involving pulleys plus wedges. Number 5, we'll talk about complex. When I say complex, I simply mean multiple pulley mass problems. So here, basically the topic will be something called the string constraint. Okay, and then 6, we'll talk about, again, complex. I'm writing complex, but what I really mean is multiple wedge systems. Okay, what we are really talking about here is something called wedge constraints. Okay, and then 7, we have complex pulley plus wedge systems. Okay, these are the 7 problems that we are going to deal with in 8th को मैं मिसलेनियस बोल देता हूँ, मिसलेनियस स्पेलिंग ही नहीं आती। इसमें हम विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट, विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग्स, ओके, and any other thing that we have not seen. And 9th, which will be the final part of this chapter, we'll talk about cutting of string, pseudo
imaginary forces. Sir, opposite to acceleration. हाँ, काश इतना सिंपल होता, मैं एक लाइन में बता, लेकिन ऐसा होता नहीं. Okay, so equilibrium problems, we have seen. What is the uniqueness about equilibrium problems? It is that summation f is equal to 0, right? We have seen this. I just want to show you one more problem on equilibrium. This one more problem I want to show because I want you to see what the choice of axis does. What are the consequences of choosing the correct and the incorrect axes? Okay. So I think this problem is given in your PDF जो है ना उसमें दिया हुआ है. So basically the question is that there is a particle of mass m and it is held together by these two strings. T1 टेंशन एक तरफ है, T2 टेंशन दूसरी तरफ है. ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे. And we have to find T1 and T2. I hope everybody has done lecture 2. Lecture 2 में जो problems थे equilibrium वाले problems, I hope everybody has done. Yes, sir. Good. So there are two choices of axes. Okay, so how choice of axis affects? How choice of axis affects a problem. So here we have choice 1. And choice 1 is the standard horizontal vertical axis. So here is the particle. This is my vertical y-axis. This is my horizontal x-axis. The forces acting on the particle are mg due to earth. Then there is tension, and this angle was also given, I think. This angle is given, theta. Then there is tension here, T2. And then there is tension here, T1. Anybody who is not understanding what I write or what I say must immediately me and ask, irrespective of what you think of your doubt बहुत silly है या नहीं है. If you are shy to ask on the microphone, you can type it on the chat window. Okay, I will not take the name. I will simply answer your doubt. Okay, okay. So please understand what I'm doing here. I have to find T1 and T2. It is, what is the angle between T1? Now you need to tell me what is the angle between T1 and, you can't ask me what is the angle between T1. You have to ask me for the angle between two things. Okay, na? So type it again. So in this, I am going to find T1 and T2 given that the object is in equilibrium. Mass m is in equilibrium. So I look at the mass. There is only one thing in the problem. So I am not really bothered about my choice of system here. My choice of system is very, very obvious. It is that point particle of mass m. And then I quickly look at the objects in its surrounding. One is Earth. The other is string 1, which is exerting a tension T1. And the other is string 2, which is exerting a tension T2.
So I quickly draw the free body diagram, mg vertically downwards, T2 roughly in the direction in which I can see, T1 roughly in the direction in which I can see, and then I draw the standard horizontal vertical axes, and I find that T1 and T2 are not lying on my chosen yellow axis. Therefore, I have to find components of T1 and T2 along the XY axis. Sir, why can't we सर हम take tilted T1 XY and axis T2 भी as बना the सकते हैं। axis? Yeah. T1 और T2 को एक्सिस की तरह क्यों नहीं ले सकते? सर हम tilted XY axis जैसे वही बोल रहा है कि वो T2 चॉइस 2 है ना। अबे करने तो दो पूरा यार, तुम तो। ओह अच्छा सर। हाँ सर। तो मैंने ये डायग्राम बना लिया FBD रिजॉल्व करने के लिए, राइट। रिजॉल्व करने के लिए मेरे को एंगल्स पता होने चाहिए बिटवीन द फोर्सेस एंड द एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये थीटा। एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए? ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, राइट। ये एंगल थीटा होएगा। ओके, I know that this is 90 degrees, angle between T1 and T2. I know it is 90 degrees. Therefore, this angle must be how much? 90 minus minus theta। theta. ये क्योंकि ये पूरा एंगल तो 180 होना चाहिए. So this angle should be equal to 90 minus theta. ठीक है. Yes. Okay. Now I can find the components of T2. जो साइड एंगल से चिपकी रहती है वो हमेशा कोसाइन ऑफ द एंगल होता है. ये T2 कोसाइन थीटा हो गया और ये T2 साइन थीटा हो गया. यहाँ पे ये T1 कोसाइन 90 माइनस थीटा हो गया, which is as you know it is equal to sin थीटा. और यहाँ पे हमारे पास आया T1 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, which as you know is T1 cosine theta, right? Okay. Now what I will do is I will say that look, along the x-axis summation of fx must be equal to 0. Therefore, the force on the left hand side, which is sine theta, must be equal to the force on the right hand side, which is T2 cosine theta. The y-axis, okay, summation of Fy must be equal to 0. Therefore, force along the positive y-axis, which is T1 cosine theta plus T2 sine theta. Okay, both these forces, they are acting in the upward direction. Therefore, they add up and they must be equal to mg. Now, from these two equations, I have to find the value of T1 and T2, which should be very easy. So T2 is equal to T1 tan theta, as I can see. T2 is equal to T1 sine theta upon cosine theta, which is equal to T1 tan theta. Right, maybe I'll keep it as sine theta upon cos theta. I don't know, maybe that will be helpful. So I'll substitute this here in the second equation. I'll get T1 cosine theta plus T2 sin square theta upon cos. T1 tan theta sin theta लिख सकते हैं या Yes, tan का sin theta. sin square theta upon cos theta. cos theta लिख सकते हैं. This is equal to mg. So this tells me that look, T1 ये मैंने कॉमन ले लिया, cosine square theta LCM ले लिया, 1 हो जाएगा. sin 1 by cos theta by cos सर theta. आप सेकंड इक्वेशन वापस बता सकते हो? This is equal to mg. हाँ, कौन सी वाली? सर T1 cos theta plus T1 sin square theta वो कैसा? हाँ, तो let this be equation 1. Let this be equation 2, right? So from equation 1, I get this, and substituting this
T2 into equation 2. Yeah, got it, sir. आया ना समझ में? हाँ, वेरी गुड. हाँ, पूछते रहना. थीटा वाला जो एक बताया था ना ऊपर, लाइक पिछली क्लास में, लाइक वो जो एक वो वेज में जो वो जो थी, वेज कहाँ है यहाँ? दिखाई दे रहा है वेदांत आपको कहीं पे वेज? वो खाली नहीं, खाली वो वेज के लिए बस वो काम आएगा ना, बाकी और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं ना. हाँ, वेज के लिए ही बताया था ना. वेज के लिए ही बताया था ना. तो वो उसको क्या पूछ रहे हैं, आप रिपीट कर सकते? वेदांत का क्वेश्चन तो रिपीट करवाना चाह रहा है. सोच ले. ये जो मैंने प्रूफ 1 और 2 दिया था यहाँ पे, वेदांत इज आस्किंग कि ये वेज के ऊपर ही अप्लाई होगा, कहीं और भी अप्लाई हो जाए. तो उसका आंसर ये है कि ये केवल वेज के ऊपर अप्लाई होगा. ठीक है ना. फ्लूइड डायनेमिक्स में, फ्लूइड स्टैटिक्स में नहीं. हाँ सर, समझ गए. Okay, so we get, I hope everybody is following now. So we get from here T1 equal to mg cos theta. is equal to mg cosine theta. And if T2 equal to mg sin theta. if T1 is equal to mg cos theta, so substituting this back into equation 1, okay, substituting this back into equation 1, we get T2 is equal to, is equal to T1 tan theta. So T2 is equal to mg cosine theta tan theta. So T2 is equal to mg sine theta. Right. So I get the value of T2 and I get the value of T1. कोई डाउट है यहाँ पे? Anybody having any doubts? No sir. बस यही आता है. तो आंसर तो हमेशा सेम ही आएगा ना. मैं तेरी एज पूछूंगा और मैं किसी और तरीके से कैलकुलेट करूंगा तो एज तो वही आनी चाहिए ना. हाँ. Choice of axis. Sir, can you scroll up one second? हाँ, please write this in your copies. टिल्टेड एक्सिस भी ले सकते हैं. हाँ, अभी लेने जा रहे हैं. हो गया? लिख लिया? Yes, sir. Okay. सर एक लाइन ऊपर जा सकते हैं. हाँ? बस सर बस. हाँ. So choice 2. Okay. So again, let me draw the FBD. This is the particle of mass m. We have mg. We have T2. We have T1. And now instead of choosing the axes which are horizontal and vertical, I will choose the axis to be like this. So this is the x-axis, this is the y-axis. तो अब इसमें फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि अब मेरे पास दो फोर्सेस एक्सिस के अलोंग हैं आउट ऑफ 3 और एक का कंपोनेंट निकालना है. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या था कि दो फोर्सेस एक्सिस के अलोंग नहीं थी, एक थी, तो हमें दोनों के कंपोनेंट निकालने पड़े. सो फर्स्ट ऑफ कोर्स हियर आई हैव टू फाइंड वेयर is theta. So that should be easy because if I look at this diagram, this is my new x-axis, right? And this is mg. So basically I want the angle between these two guys. And then I notice that ये तो 90 degrees है, ये तो मेरे को मालूम है 90 degrees है. और मेरे को ये भी मालूम है कि ये 180 डिग्री होना चाहिए क्योंकि ये तो मैंने स्ट्रिंग को, जो सेकंड वाली स्ट्रिंग है, इसी को एक्सटेंड कर दिया है. तो ये एंगल कितना होना चाहिए? What should be this angle? ये 90 है, ये थीटा है, ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा. 90 minus. ये एंगल होना चाहिए 90 माइनस थीटा. अब ये एंगल किसके बीच में है ये हमें
we have to be very, very clear. This is the angle between the vertical, okay, along which mg lies, and the elongated string T2, मतलब कि जो string के straight line है उसके और vertical के बीच का angle 90 minus theta है. I hope this is clear to everyone. Anybody having doubts, please ask, okay? Please ask. So मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि why am I saying ask? I remember when I was being taught ये सारी चीजें, and I simply could not understand. ये टीचर जो है कहाँ से, बे ये थीटा यहाँ कहाँ से आया, बे ये 90 माइनस थीटा यहाँ कहाँ से आया. I could not understand. I do not want that situation to be repeated with you, right? देखो. तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि हमने जो है हमें पता था कि एक्स एक्सिस और T2 के बीच में थीटा था, तो हमने उसको थीटा रोटेट कर दिया, तो mg और जो दूसरे वाले एक्सिस का थीटा ही रहेगा. हाँ, कई तरीके हैं सोचने के. Yes. देखो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये mg की लाइन है ना, और ये एंगल थीटा हमको गिवन है, ये 90 डिग्रीज है, तो ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए. ये तो इसमें सबको क्लैरिटी है, राइट? इसमें सबको क्लैरिटी है. Yes, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को ये बता दो कि ये एंगल कितना है, इसको करने के कई तरीके हैं. एक तरीका ये है जो मैंने ऊपर ये किया यहाँ पे, बट आई डोंट वांट टू रिपीट दिस, ओके, आई डोंट वांट टू रिपीट दिस. तो एक तरीका ये है करने का कि मैं ये एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे बना दूं ऐसे. अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ऐसे बना देता हूं, तो will you agree that this will be 90 degrees? Will everybody agree that this will be 90 degrees? क्योंकि जो सीलिंग है वो तो हॉरिजॉन्टल है, ये तो हमें गिवन है. Yes. है ना? अब ये एंगल अगर थीटा है, राइट, तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस 90 माइनस थीटा होना चाहिए, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ये. 90 माइनस. हाँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल में फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल से वो भी 90. हाँ, फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये रहा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होना चाहिए, राइट? सो दिस एंगल शुड बी 90 माइनस थीटा. So what are the components? The components are here. T sin theta and mg cos theta. sin theta. mg cosine of 90 minus theta mg sin theta, is mg equal cos. to mg sin theta. And यहाँ पे आना चाहिए mg sin of 90 minus theta mg cos theta. equal to mg cosine theta. ठीक है ना? Now I will write this again, that along x-axis, summation of forces along x-axis must be 0. तो x-axis के पॉजिटिव x-axis की तरफ जो फोर्स है, that should be equal to the force जो नेगेटिव x-axis पे है. And along y-axis, T1 equals to mg cos theta. the force which is acting along the positive y-axis must be equal to the force which is acting along the negative y-axis, which in this case is mg cosine theta. So we get the answer immediately. Here also we get the answer. Okay? Here also we get the answer. But the process is lengthy. The process is long drawn out. तो ऐसा नहीं होगा आपके पास आंसर नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है. ठीक है ना? लेकिन you have to remember that हम
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, राइट? अगर ये ऐसा एग्जाम होता जो आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा होता, यू वुड हैव गॉन इनसाइड एंड आपके पास इनफाइनाइट टाइम होता, आप जाइए अपना 2-3 दिन में टेस्ट दीजिए, कोई इशू नहीं है, then the choice would not matter. But when you are giving a test and you are faced with this kind of a question, okay, and you will be, then the choice of axis will be very, very important. Because, not because आपका आंसर गलत आ जाएगा, yes, आंसर नहीं सही आएगा, but because समय आपका सेव होएगा. So the amount of time required to do this work, okay, and the amount of time required to do this work is phenomenally different. So whenever you choose your axis, while we are discussing Newton's laws of motion, please remember that choice of axis is very important. You should always choose an axis in which maximum number of forces lie along your chosen axis. Okay. Sir, can you please explain again choice 1? हाँ. Choice 1 में हमने क्या किया, हमने नॉर्मल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस ले लिया. जब नॉर्मल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस लिया तो mg तो मेरे नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, कोई इशू नहीं है, लेकिन T1 और T2 वाले एरोज जो हैं वो मेरे एक्स वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है. तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे वो भी अप्लाई कर सकते हो, क्या बोलते हैं, you can also apply, let me show you. You can also apply addition of vectors. Choice 3. You can also apply addition of vectors. You can say that look, ये है टेंशन T1, okay, and इसमें ऐड किया हमने टेंशन T2. मेरे को मालूम है कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री. ठीक है, नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया शायद. सर T2 का डायरेक्शन रॉन्ग है. हाँ, मैंने T1 T2 ही गलत कर दिया. T1 का सही है ना? हाँ, तो ये Yes, sir. आया T1, ये वेक्टर, पहला वेक्टर, राइट? रिमेंबर हाउ टू ऐड वेक्टर्स. Draw the first vector, then from the head of the first vector draw the second vector, then from the head of the second vector draw the third vector, and so on and so on. तो ये आया T1 और इसके परपेंडिकुलर आया T2 ऐसे. अब जो थर्ड वेक्टर मैं बनाऊंगा, दैट इज फ्रॉम द हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर, दैट विल बी mg, दैट हैज टू लैंड ऑन द टेल ऑफ T1. Why? Can anybody tell me why? Why does mg Equilibrium. चॉइस बता, थर्ड चॉइस बता रहे हो Summation of f of x is summation of x is 0? Okay, summation of f of x नहीं, summation of f is 0. sir f. तो तीनों फोर्सेस ऐड होके 0 होंगे. तो इसका मतलब कि जो mg वेक्टर आएगा वो ऐसे ही बनना चाहिए. ये रहा mg. और हमें ये भी मालूम है कि T1 और mg के बीच का एंगल, okay? हाँ, ये है T1 और mg के बीच का एंगल. ये कितना है? थीटा. थीटा. तो इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल है ये होना चाहिए थीटा. अगर ये एंगल थीटा है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि ये वाला साइड का लेंथ T1 है, ये वाला साइड का लेंथ T2 है, और ये वाला साइड जो हाइपोटेन्यूज है उसका लेंथ mg है, तो T1 की वैल्यू क्या होएगी, T2 की वैल्यू क्या होएगी? भाई sin theta will be equal to T2 upon mg. So T2 will be equal to mg sin theta, and T1 will be Sir, equal. how did you get this angle as theta? एक मिनट, वो उल्टा आ गया क्या? नहीं, सही है. How did I get this angle as theta? This is what you are asking, na? Yes, sir. Okay. So if you ऊपर वाला एक्सप्लेन करो, लाइक जो आपने वो बनाई ब्लू और रेड वाला, उसके जो सेकंड चॉइस के जो नीचे बनाया वो एक बार मुझे नहीं समझा. सेकंड चॉइस के नीचे जो बनाया, एक मिनट.
एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ तो ठीक बनाया। यार मैं इसी से परेशान हूँ। हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ सर सेकंड ठीक चॉइस बनाया था। MG T1 T2 ये आया ना समझ में? हाँ सर सेकंड चॉइस के नीचे जो बना है वो नहीं तो समझा। तेरा अभी रुक जाना, मैं तेरा डाउट बता रहा हूँ वेदांत, बाकी लोग भी तो पूछने का हक रखते हैं, नहीं रखते हैं? ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। तो T1 और MG के बीच का एंगल चाहिए ना मेरे को। T1 और MG के बीच का एंगल तो यही होएगा ना, ये वाला एंगल। और अगर ये हॉरिजॉन्टल है और ये एंगल थीटा है, राइट, ये यस एंगल सर। 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होएगा? थीटा होएगा ना, बिकॉज द एंगल बिटवीन T1 एंड T2 इज 90 डिग्रीज, राइट? 90 यस सर। है ना? हाँ भाई, ये थर्ड वाला समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? व्हाट आर वी डूइंग हियर? We are simply saying that look, the force vectors acting on the particle are adding up to 0. Okay? The force vectors acting on the particle are adding up to 0. That is what we are saying here. How you add the vectors is your choice. Now, how do you add vectors? Well, you can use the polygon rule of law, the polygon law of addition of vectors. ये रहा. Okay. You can use I cap j cap वाला method. You can convert all vectors to I cap j cap. ये रहा वो मेथड. ओके, यहाँ पे मैं I cap j cap यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अलग से लिया रखा है. मैंने along x एक्सिस में अलग काम कर रहा हूँ, along y एक्सिस में अलग काम कर रहा हूँ. अगर मुझे यहाँ पे फोर्सेस को सबको I cap j cap में लिखना है तब तो मैं लिख ही लूंगा. T2 कोसाइन थीटा I cap प्लस T2 साइन थीटा j cap, T1 साइन थीटा माइनस I cap प्लस T1 कोसाइन थीटा j cap और माइनस mg j cap. ये तीन वेक्टर्स को ऐड करने हैं भाई, और इनका जो सम आएगा वो 0 होना चाहिए. तो समथिंग I cap प्लस समथिंग j cap अगर 0 है तो I cap का कोएफिशिएंट भी 0 होना चाहिए और j cap का कोएफिशिएंट भी 0 होना चाहिए. मैं यही काम कर रहा हूं. अगर I cap के कोएफिशिएंट को आप 0 करेंगे तो ये आएगा, j cap के कोएफिशिएंट को 0 करेंगे तो ये आएगा. लेकिन मैं I cap j cap की चॉइस अपनी रख सकता हूं. इट इज नॉट नेसेसरी that I take the horizontal axis as the positive x-axis. It is not necessary that I take the vertical axis as the y-axis. I can take any two mutually perpendicular axes as xy. तो मैंने यहाँ पे ऐसी एक्सिस चूज करी जो एक एक्सिस x एक्सिस है वो T2 के अलॉन्ग है और y एक्सिस T1 के अलॉन्ग है. अब जो mg वाला वेक्टर है वो मेरी एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है. तो अगर मैं I cap j cap के टर्म्स में लिखूंगा इस केस में, तो मैं लिखूंगा भाई तीन वेक्टर कौन से हैं जो ऐड हो रहे हैं भाई? तो T1 j cap एक ऐड हो रहा है, T2 I cap एक ऐड हो रहा है, और तीसरा वेक्टर कौन सा है जो ऐड हो रहा है? माइनस mg साइन थीटा I cap माइनस mg कोसाइन थीटा j cap. इन तीनों को ऐड करके मुझे इक्वेट करना है 0 से. तो जो मैं I cap के कंपोनेंट्स को 0 करूंगा तो मुझे ये इक्वेशन आ जाएगी. मैं j cap के कंपोनेंट 0 करूंगा तो मुझे ये इक्वेशन आ जाएगी.
अगर आप आई कैप जे कैप से करना ही नहीं चाहते हो, आप बोलो नहीं मैं तो भाई पॉलीगन लॉ से ही संतुष्ट हूं, तो ये लो पॉलीगन लॉ से हो गया। आप ये बोलो नहीं मैं तो पैरेललोग्राम लॉ लगाना चाहता हूं, तब भी हो जाएगा, तब भी कोई इशू नहीं आएगा। आप पहले T1 T2 को ऐड कर लो और उसका जो भी सम आएगा वो mg के इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए, तब भी आंसर आ जाएगा। राइट, सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी आर एडिंग द वेक्टर्स, 3 vectors in this case acting on the object to 0, that's it। और इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही होता है। अगर ये तीनों वेक्टर ऐड होके 0 नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करने लगेगा, जैसा हम देखेंगे अभी। सर हम्म सीधे थर्ड चॉइस में बेसिकली आपने लाइक वो पॉलीगॉन लाइक थर्ड चॉइस आपने किया कैसे, लाइक जो वो फर्स्ट सेकंड में समझा, थर्ड वाला नहीं समझा मुझे। आपको वेदांत पीछे जाना पड़ेगा ना, आपको पॉलीगन लॉ आपको कॉपी में खोल के देखना पड़ेगा बच्चा, ऐसे नहीं होता है कि। हाँ वो पता है, लेकिन इसको यूज कैसे किया आपने, क्या किया क्या इसमें? नहीं तो पॉलीगन लॉ में करते क्या है वेदांत, ये बताएगा मेरे को? वो तो मुझे मालूम है हाँ क्या टी1 और करते हैं पॉलीगन लॉ में। सर वो वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, अगर उसका जो वो कौन सा वेक्टर ड्रॉ करते हैं? उसका जो जहाँ से वो खत्म हो रहा है वहां से टेल कौन सा वेक्टर ड्रॉ करते हैं? दोनों का एडिशन वाला। अरे डायरेक्शन बताना, कौन से टेल से हेड से कैसे बनाएगा? हाँ टेल जो है जहाँ से वो एंड हो रहा है, जो दो वेक्टर जो मैंने ड्रॉ किया वहां से चालू होगा, और हेड जो है जहाँ से अरे स्टार्ट किया बेवकूफ, हुआ। कौन से वेक्टर ड्रॉ करते हैं? कौन से वेक्टर की बात कर रहा है? पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन कौन से वेक्टर में ड्रॉ होता है? एडिशन लाइक ए प्लस बी के लिए अरे तो ए क्या है, T1 बी क्या है, T2 सी क्या है? mg 3 वेक्टर मैंने बनाए कि नहीं बनाए? बनाए कैसे बनाया? पॉलीगन लॉ से। एक वेक्टर बनाया, उसके हेड से दूसरे का टेल बनाया, फिर उसके हेड से तीसरे का टेल बनाया, यही तो किया है। हाँ तो इसमें तेरे को क्या नहीं समझ में आ रहा? अरे बताएगा। सर वो जो थर्ड जो रिजल्टेंट है वो mg के बराबर आप कैसे बोल रहे हो? क्या? वो जो रिजल्टेंट है वो mg के बराबर आप कैसे बोल रहे हो? अबे 3 वेक्टर ऐड होके 0 हो रहे हैं तो क्या बनता है पॉलीगन लॉ से? तीनों जीरो हो रहे हैं। तीनों हाँ, 0 तो नहीं, इक्विलिब्रियम में जीरो हाँ होंगे तो इक्विलिब्रियम में। तीनों ऐड होके 0 होते हैं तो क्या बनता है पॉलीगन लॉ में? एक ट्रायंगल बन देगा। ये क्या बनाया है मैंने? ट्रायंगल। तो क्या चाहता है भाई, नहीं बनाऊं ट्रायंगल? डाउट क्या है? ठीक है डाउट समझ गया। क्या समझा बता? आपने T1 और T2 वेक्टर बनाए, फिर उसका जो एडिशन है वो mg आपने ले लिया। मैंने एडिशन बनाया नहीं है उसका, तो एडिशन कहाँ बनाया मैंने? T1 और T2 का जो मैंने कहाँ एडिशन बनाया? T1 और T2 का जो आपने ऐड किया है, जो आपने वो पॉलीगन लॉ से बनाया ना। T1 T2 ऐड ही नहीं किया है मैंने। तेरे को पॉलीगन लॉ याद ही नहीं है इसका मतलब। और जब याद नहीं रखेगा तो कंफ्यूजन तो आना ही आना है। कितने वेक्टर ऐड करने हैं यहाँ पे? दो वेक्टर, दो नहीं तीन, सॉरी 3 वेक्टर ऐड करना है। कितने ऐड करने हैं? 3। कौन कौन से? mg T1 और T2 कैसे ऐड करेंगे? पॉलीगन लॉ से। पॉलीगन लॉ से कैसे ऐड करेंगे? वो वेक्टर्स ड्रॉ कर देना है हमें, और एक टेल और हेड दोनों वो वेक्टर्स ड्रॉ कर देना है। टेल और हेड दोनों वेक्टर ड्रॉ कर देना है। वापस जाके पॉलीगन लॉ को एक बार आप रिवाइज करो, तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। और अगर नहीं मन है मत करो, जैसे मैंने ये बताया वैसे करो। कोई मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूं ना कि ऐसे ही करना है, ये मैं कर रहा हूं जबरदस्ती? इट इज योर चॉइस हाउ यू वांट टू डू।
Okay, so this takes care of equilibrium problems, right? Now let us start with simple pulley mass systems. सर आप चॉइस 2 एक बार में पूरा दिखा सकते हो? हाँ, चॉइस 2 में बताओ, क्या नहीं समझ में आया स्पेसिफिकली? नहीं मतलब सर नोट डाउन करना तो आप जूम आउट करके पूरा एक स्लाइड में दिखा सकते हो। जूम आउट करके मैंने एक्स वाई एक्सिस चूज करी such that x axis lies along t2 and y axis lies along t1. I can make this choice because it is given to me that the angle between t1 and t2 is 90 degrees. If this was not given, right, then that's the end of the story. मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं कोई भी चॉइस ऑफ एक्सिस लेता, जो मैथ्स करनी पड़ती वो गंदी आती। लेकिन चूंकि T1 और T2 के बीच का एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए मैंने x एक्सिस अलोंग T2 और y एक्सिस अलोंग T1 चूज किया। mg is a vector which is not lying along my chosen xy axis. Therefore, I found the angle made by mg with either the x axis or the y axis. In this case, I found the angle made by mg with a negative x axis. And then I took the components of mg along my two chosen axes, and then I simply equated the forces along x-axis to 0. That means force along positive x-axis is equal to force along negative x-axis, and the force along y-axis to 0. That means the force along positive y-axis is equal to the force along negative y-axis. हाँ, पूछो। Yes, sir. सृष्टि कुछ पूछना है? आस्क। नहीं सर, गलती से हो गया। तो चॉइस 2 या चॉइस 3 से मैं कोई भी करूँ टाइम उतना ही लगेगा ना, क्योंकि चॉइस 3 बचा नहीं है। नहीं, कोई उसमें कोई सेट रूल नहीं है, वो तो हर क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है। अब अगर 10 वेक्टर हैं और आप सोचो कि नहीं मैं अभी पॉलीगन लॉ लगा लेता हूं, तो हालत खराब हो जाएगी ना। 3 थे, उसमें से 2 के बीच का एंगल 90 था, तो मैंने लगा दिया पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। पॉइंट जो मैं पुट अक्रॉस करना चाह रहा था वो सिंपली ये कि वी आर सिंपली कैरिंग आउट वेक्टर एडिशन। इक्विलिब्रियम है, वेक्टर एडिशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, जैसा हम देखने जा रहे हैं, तो सम ऑफ वेक्टर्स इक्वल टू ma हो जाएंगे। दैट्स इट। कंपोनेंट्स में डिवाइड करके चलने में फायदा ये है कि हमें मालूम है कि x और y एक्सिस के मोशन एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं, राइट? एंड दैट्स व्हाई मैं x एक्सिस का एक्सप्रेशन अगर मैं अलग से निकालूं, y का अलग से निकालूं, तो then it will be easier for me. Okay, so next सर is आप चॉइस 2 नोट करने के लिए दिखा सकते हो, मतलब ऐसे जो आप जूम आउट करके दिखा रहे थे चॉइस 1 के लिए। अभी तक क्या कर रहा था? सर वो मैंने सुन लिया, फिर मतलब सर जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था सर, वो मास वाला सर, उसको डाउट। हाँ हाँ, वही बताता हूँ सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। हाँ, देख लिया है। हिंट चाहिए कि सॉल्व कर दूं? नहीं सर, सॉल्व कर लिया सर, वही सर मास वाला सर वो प्रॉब्लम। मास से इंडिपेंडेंट नहीं आ रहा। हाँ सर, वही मतलब शायद गलत कर रहे हो तो। मास से इंडिपेंडेंट क्यों आएगा? नहीं सर, वो मैंने अज्यूम किया था एग्जाम क्वेश्चन के लिए। क्या? हाँ सर, अज्यूम मास। करके किया था मास। नहीं, इसमें मास एम गिवन है भैया। नहीं, इसमें तो केवल शो दैट द फोर्स इंक्रीजेस एज द मैन मूव्स अप है ना। सर सेकंड पार्ट में दिक्कत है ना सर। सर फाइंड द फोर्स वो भी है ना।
हाँ तो उसमें मास से इंडिपेंडेंट नहीं आ रहा। नहीं 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 नहीं, एम दिया हुआ है उसमें, डोंट वरी अबाउट इट, एम दिया हुआ ओके सर। है। ये एक्चुअली एचसीवी का क्वेश्चन है, पता नहीं मैंने कैसे कॉपी पेस्ट किया है वो, एचसीवी में एक बार क्रॉस चेक कर लो। ओके सर। हाँ भाई हो गया ना, आगे बढ़े। यस सर। यस So simple pulley mass system. So we have ceiling, which is fixed. We have clamp fixed to the ceiling. And this clamp is holding the center of the pulley. There is a string which is passing over the pulley, and one end of the string is connected to a block of mass M1, and the other end of the string is connected to a block of mass M2. So we want to find many things about this system. This is called an Atwood. This is called an Atwood. अगर मैं लिख पाऊं तो Atwood machine. ठीक है ना, कोई भी पुली मास सिस्टम ऐसे वर्टिकल वाला हो, उसमें मल्टीपल पुलीज भी हो, वो भी एटवुड मशीन ही कहलाएगा. बट दिस इज द बेसिक एटवुड मशीन. अब सर एटवुड मशीन क्यों? हाँ जी, सर एटवुड मशीन क्यों? हाँ नहीं समझ में आया. सर मतलब एटवुड मशीन क्यों, मतलब तेरा नाम पलाश क्यों है बे? है क्यों है नहीं तेरा सर, नाम? मतलब वैसा कोई साइंटिस्ट है क्या? मेरे को क्या मालूम बे, ये क्या, ये तो सर वो मॉडल करते हैं ओके ना सर। सर, वैसा ही होगा. तो जिसका जिसका मेरे को लॉजिक पता रहता है मैं बता देता हूँ, बट इसका मुझे मालूम नहीं है. तो गूगल है यार, व्हाई आर यू वरीड? गूगल में डालो व्हाई इज एटवुड मशीन कॉल्ड एन एटवुड मशीन. ओके, अभी नहीं डालना है, क्लास के बाद. तो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी. पहली, सो कमेंट्स अबाउट द पुली. Number one, the pulley is massless. Okay. Number two, मैंने बोला ना बे अभी नहीं. Atwood machine was invented in 1784 by English mathematician George Atwood. लो भैया हो गया. It is massless, and number two, it is frictionless. Now massless होने के कुछ consequences होते हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे when we study complex pulley mass systems. Okay, then I'll tell you what is the consequence of the pulley being massless. For the moment, massless pulley से हमें कोई लेना देना नहीं है. हमें बस ये समझना है कि पुली अभी जो प्रेजेंट जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं उसमें पुली का कोई रोल नहीं आएगा. okay? या मैं बता भी सकता हूँ, कोई ऐसा वो नहीं है. मासलेस का कॉन्सिक्वेंस आई कैन टेल आल्सो, दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील. मासलेस का कॉन्सिक्वेंस ये होता है दैट द समेशन ऑफ फोर्सेस ऑन सच ए हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू 0. The summation of forces on such a hypothetical object must always be 0. Okay. So what this means is that if you have a pulley which is having a tension T acting on it like this, tension T acting on it like this, then the upward tension must necessarily be equal to 2T. Okay. So the pulley which is massless must have
नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एज इक्वल टू 0। तो जितना टेंशन नीचे लग रहा है उतना ऊपर लगना चाहिए, जितना टेंशन लेफ्ट में लग रहा है उतना ही राइट में लगना चाहिए। ठीक है। फ्रिक्शनलेस होने के भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फ्रिक्शनलेस होने के कॉन्सिक्वेंस ये है दैट टेंशन इन स्ट्रिंग ऑन बोथ साइड्स इज सेम। तो जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, यहाँ टी लिखा है, यहाँ भी टी लिख दिया, राइट। तो अगर ये पुली फ्रिक्शनलेस नहीं होती तो ये टेंशन इक्वल नहीं होते, बट we are not going to see a frictionless we are not going to see a non-frictionless pulley for a long time. So therefore I will end this discussion here कि फ्रिक्शन है या नहीं है पुली में। अभी जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक पुली मासलेस रहेगी और फ्रिक्शनलेस रहेगी ही रहेगी। Okay, so how to analyze this Atwood machine? In fact, how to apply F is equal to ma if I know that there is no equilibrium. Okay. M1G minus T equal to M1A and M2G minus T equal to M. मुझे कर लेने दे, मुझे नहीं तो ये पढ़ाएगा। But for tension to be same, won't the masses also be same? क्या? नहीं। सतगुण अभी जब वेदांत क्वेश्चन पूछेगा तो बता देना। M1 और M2 masses हैं, they are connected together by a string. This string passes over a pulley, right? And since the pulley is frictionless, therefore the tension on the string must be same. Different string होती तब tension different हो जाती, पुली frictionless नहीं होती तब different tension हो जाती। लेकिन हम लोग टेंशन सेम लेके चलेंगे, ठीक है ना, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। So how am I going to solve a problem in which the F is equal to ma equation is to be applied such that we know that A is not equal to 0? A 0 होता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समेशन ऑफ F is equal to 0, एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है ना। इस केस में हम क्या करते हैं कि हम एक अपनी तरफ से असम्पशन करते हैं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है ना। हो सकता है हमारा असम्पशन गलत हो, राइट। अगर हमारा असम्पशन साइन में गलत है, इसका मतलब कि m1 ऊपर जा रहा है हमने नीचे अज्यूम कर लिया, m1 नीचे जा रहा है हमने ऊपर अज्यूम कर लिया। अगर साइन में गलत असम्पशन है तो हमारे आंसर में नेगेटिव साइन आ जाएगा, लेकिन हमारा आंसर करेक्ट रहेगा। जब हमारे आंसर में नेगेटिव साइन आएगा तो हम बोलेंगे अच्छा हमारा असम्पशन तो गलत था। लेकिन अगर हमारा असम्पशन बिल्कुल ही अलग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे m1 नीचे जाएगा और हमने अज्यूम कर लिया कि वो लेफ्ट जाएगा, तब गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे वी आर assured that m1 and m2 will be traveling vertically, right? So we are going to release m1 and m2, and when we release them we know that they are going to be traveling vertically. ऊपर कौन जा रहा है नीचे कौन जा रहा है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे को ये assured है कि ये m1 m2 दाएं बाएं नहीं जा रहे होंगे, ऊपर नीचे ही जा रहे होंगे, right? Because there are no forces acting on the objects m1 and m2 which is in the horizontal direction. So m1, now we assume, I assume that it is going up with an acceleration a. हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं सही हूं। एंड अगर m1 एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है तो ये गारंटीड है कि m2 एक्सेलरेशन a से नीचे जा रहा होगा, राइट? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि m1 और m2 एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। तो अगर m2 x डिस्टेंस नीचे ट्रैवल करता है तो ये गारंटीड है कि m1 x डिस्टेंस ऊपर ट्रैवल करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है
वो हमारे लिए आइडियल स्ट्रिंग है। आइडियल स्ट्रिंग के बारे में भी आई वुड लाइक टू say something. Okay, so comments about ideal string. Ideal string के बारे में मैं ये बोलूंगा, number one, that massless. Massless and no slash. tension is same throughout, okay, unless of course it is on a friction wala pulley. B, massless, and C, inextensible. You cannot change the length of the string. So if M2 goes down by a distance of X, it is guaranteed that M1 will go up by a distance of X. If the velocity of M2 is V downwards, then it is guaranteed that the velocity of M1 will be V upwards. Okay. If M2 has an acceleration A downwards, then it is guaranteed that the acceleration of M1 will be upwards. ठीक है ना, ये हमारे पास बहुत obvious सी चीजें हैं, ठीक है ना. Okay, so what is the first step? First step is that we are डिस्कार्ड करेंगे. हाँ, हम ये assumptions बाद में डिस्कार्ड करेंगे. नहीं क्यों डिस्कार्ड करेंगे, हमें तो एक ही वैल्यू निकालनी है ना. वी आर ट्राइंग टू फाइंड नहीं सर, मतलब फ्रिक्शन और बाद में थोड़ा स्ट्रिंग के बारे में पढ़ने के बाद ये अबे जो बाद में inextensible होना है उसको छोड़ दे यार, बाद में बहुत कॉम्प्लिकेशन आने हैं. बट डोंट वरी अबाउट इट, ट्राई टू एब्जॉर्ब व्हाट आई एम टीचिंग. अभी मैं जो बता रहा हूँ, ट्राई टू एब्जॉर्ब दैट. सो फाइंड acceleration and tension. This is what we are aiming to do. Okay, so once you have assumed the acceleration, then you draw the FBD for the blocks. Okay, so for M1 and for M2, the FBDs will be extremely simple. There will be M1G acting downwards, there will be T acting upwards. Same for M2. There will be M2G acting downwards due to earth, and there will be T acting upwards due to the string. Now, we look at the acceleration A, okay, and then we write the second law equations. अब यहाँ पे A ऊपर assume किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो टेंशन फोर्स है वो M1G से ज्यादा है, राइट. दैट इज व्हाई दिस ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स. अगर टेंशन फोर्स M1G के बराबर होती तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहता. अगर M1G टेंशन से ज्यादा होती तो ये ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट कर रहा होता, राइट. All forces on pulley are essentially caused by gravity. Pulley massless है, gravity is having no effect on the pulley. So the equation that I will write here is T minus M1G is equal to M1A. Right? What have I written? This quantity here, summation of forces, and this quantity here is the acceleration of the particle. F is equal to m. अपने डाउन नेगेटिव लिया है, हाँ अपने डाउनवर्ड्स नेगेटिव लिया है. हाँ, मतलब वैसे बोल सकते हो, बट आई डोंट थिंक यू नीड टू थिंक लाइक दैट. आई मीन यू कैन सिंपली से कि टी mg से बड़ा है इसलिए ऊपर जा रहा है. टी माइनस mg इज इक्वल टू m1a. सिंपल, ठीक है. So it should be 0, right? But T minus M1G. हाँ, T minus M1G should be equal to 0, right? If the blocks are इक्विलिब्रियम में नहीं है, मूव कर सकते. okay. हाँ, इक्विलिब्रियम नहीं है ना भाई, मैं बता रहा हूँ इक्विलिब्रियम नहीं है. तो सर यहाँ यहाँ पर वो एज एक्सेलरेशन से ऊपर मूव करा हुआ है ना बेसिकली. हाँ, बेसिकली वही है. फिर यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगी, यहाँ पे इक्वेशन आएगी
m2g m2g minus t equals to m2a. minus t is equal to m2a. So again, these are the summation of forces. This is the acceleration of the object. What have I done? यहाँ पे acceleration ऊपर मैंने assume किया था, तो ऊपर वाली फोर्स माइनस नीचे वाली फोर्स इज इक्वल टू ma लिख दिया। यहां पे एक्सेलरेशन नीचे अज्यूम किया हुआ है, तो नीचे वाली फोर्स माइनस ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू ma लिख दिया। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू फॉलो। अगर आपने एक्सेलरेशन राइट में बनाया है तो राइट वाली फोर्स माइनस लेफ्ट वाली फोर्स इज इक्वल टू ma लिखेंगे। अगर एक्सेलरेशन लेफ्ट में बनाया है तो लेफ्ट वाली फोर्स माइनस राइट वाली फोर्स इज इक्वल टू ma लिखेंगे। राइट, दिस इज हाउ वी स्टार्ट। Later on, of course, I will tell you more methods, more superior ways of thinking about this. But for the moment, this is the best way to handle things, right? We assume an acceleration and we follow our equations from that assumption, and then we solve the equations. And if I get a minus sign with my answer, that's okay. Minus sign will just tell me that my assumption of acceleration was wrong. Okay, now let's solve these two equations. So what are the two equations? We have t minus m1g is equal to m1a and m2g minus t is equal to m2a, right? So I want to get rid of t first and find a. So I'll just add these two ऐड equations. कर देंगे ना। ऐड करें, yes. जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? m1g plus m2g m2g minus m1a m1g plus equals to m2a. m1a plus m2a. ऐड तो कर ले भाई सदगुण, क्या करो इतनी जल्दी में है तू? तो यहाँ पे आएगा g m2 माइनस m1 और यहाँ पे आएगा By a m2 plus m1. plus m2. m1 plus m2. So we get a is equal to m2 minus m1 into g divided Divided by m1 plus m2. Right? ये वैल्यू हमें Yes, याद sir. रखनी है। yes. ये वैल्यू हमें याद रखनी है। ये वैल्यू हमें बाद में बहुत काम आएगी। हर बार हम इसको डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो याद करना है। याद ऐसे नहीं करना है कि रटना है जैसे 10th में रटा था, ऐसे नहीं करना है। वी हैव टू जस्ट सर वो जो आपने ऊपर जो एक डायग्राम दिखाया था ना, वो वाला ऊपर वो पुली में वो अपने टूटी ऊपर कुछ लिखा था, तो टूटी फोर्स का वो बैलेंस करने के लिए बेसिकली आपने क्या एज्यूम किया था कि टूटी फोर्स ऊपर लग रहा है जो कि T1 और T2 को बैलेंस कर रहा है? क्या? वो जब आपने टूटी ऊपर जो एरो आपने दिखाया था, तो वो टूटी आप बेसिकली एज्यूम कर रहे हो कि वो T1 और T2 को बेसिकली बैलेंस करने के लिए वो फोर्स लग रहा? माइक को मुंह मत डाल, माइक को मुंह से दूर रख। सर ये नहीं, नीचे नीचे सर नीचे सर, नीचे नीचे। पुली वाला। हाँ, हाँ तो यहाँ पर जो, हाँ बस जो डायग्राम आपने बनाया टूटी, वो बेसिकली टी और टी को बैलेंस करने के लिए बेसिकली जब आप डबल फोर्स लगाओगे तब जाके वो नीचे दो बैलेंस होगा, ऐसा कुछ आपने सोचा है क्या? इक्विलिब्रियम में होने के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं है वेदांत। मैंने इसके बाजू में ये क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ये क्या समझ में आ रहा है इससे आपको? एफ नेट 0 है, टोटल फोर्स 0 है। हाँ, तो नीचे अगर टी और टी लगा है तो ऊपर क्या लगा होगा? 2t। अच्छा राइट, सो ए आ गया। नाउ सपोजिंग दैट मेरा m2 मास 1 किलोग्राम होता और m1 मास 10 किलोग्राम होता। m2 मास 1 है, 9/11 m1 10 है, तो एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव। m2 1 बोला ना आपने? हाँ, m2 1। अगर m2 1 तो है सर तो नेगेटिव होगा ना? नेगेटिव होगा फिर। सदगुण ज्यादा तेज मत कूद, आराम से रहे, थोड़ा देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। हाँ फिर Please. बताओ, ए नेगेटिव हाँ आएगा? सर नेगेटिव होगा, नेगेटिव। So कैसा A नेगेटिव? will be -9g अपॉन। this implies that my assumed direction
of A was wrong. And if M2 is equal to 10 kg, M1 is equal to 1 kg, Assumed direction of A was correct. It will be positive. positive. So this means that assumed direction is correct. Okay, now your turn. सर तो जो ग्रेटर मास होगा उसके तरफ मतलब उसके नीचे एक्सेलरेशन आएगा ना? हाँ, तो मेक सेंस ना? सर मेरे को सर डायरेक्शन लेने में दिक्कत हो रहा है, एक बार बताएंगे? क्या सर मेरे को डायरेक्शन लेने में दिक्कत हो रहा डायरेक्शन लेने में दिक्कत हो रहा है, मतलब नहीं समझ में है आया। सर। मतलब आपने पहले वाले में लिया t माइनस m1 जी, आपने एज्यूम किया कि m1 जो है ऊपर जा रहा है। भाई सर पहले हमें काम मार्क्स क्या देंगे किया? ना वो लोग, पहले हमें काम उससे क्या किया है? नहीं नहीं, मार्क्स मिले ना मिले उससे मतलब नहीं। पहले काम मैंने क्या किया है सतमु? लाल एरो पहले बनाइए कि हरी एरो पहले बनाइए? लाल। तो अगर रेड एरो पहले बनी है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो अज्यूम हो गया। यस। अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमारा अज्यूम्ड है तो बड़ी फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है वो भी अज्यूम्ड है। हाँ या ना? तो आप फिर से बोलेंगे लास्ट वाला? हाँ, तो लास्ट वाला सेंटेंस वापस से बोलेंगे। अगर डायरेक्शन ऑफ, अगर आपको दो बंदों ने आपका हाथ पकड़ के आपको खींच रहे हैं, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर राइट, व्हाट कंक्लूजन शुड आई ड्रॉ? राइट इज हैज मोर फोर्स, हाँ, राइट वन हैज मोर the right wala person has applied more force as compared to the left wala person. Is this a correct conclusion you think? यस। तो यहाँ पे जब m1 का एक्सेलरेशन ऊपर अज्यूम किया है और m1 पे t ऊपर लग रहा है और m1g नीचे लग रहा है, तो which should be the larger force? t। I have simply written larger force minus smaller force is equal to ma. I am not talking about direction. I am not saying कि मैंने ये पॉजिटिव लिया वो नेगेटिव लिया, इधर उधर मैंने हाई फाई काम कर दिया। हाँ वही सर, पहले वाले में अगर एक्सेलरेशन ऊपर है और दूसरे वाले में नीचे है तो डायरेक्शन का साइन Please इससे अलग add these two vectors. सर ये उसमें टेंशन का दो Minus अलग अलग 19. वैल्यू आ रहा है। हाँ, टेंशन का दो अलग अलग वैल्यू आ रहा है। क्वाड्रेटिक आया क्या टेंशन? नहीं सर, वो टेंशन का मुझे दो अलग अलग इक्वेशन मिला, तो मुझे एक में आया कि 2m1 स्क्वायर g बाई m1 प्लस m2 और दूसरे में 2m2 स्क्वायर g बाई m1 प्लस m2। क्वाड्रेटिक नहीं है ना? नहीं सर, क्वाड्रेटिक नहीं है। 5x plus 2y is equal to 10 and 3x plus y is equal to 5. I don't. Can you solve this? याद है कैसे सॉल्व करते थे? हाँ Yes, सर sir. याद है। इसमें y के कितने वैल्यूज आएंगे? एक ही है यस सर। हाँ, सर एक ही आएगा। x इक्वल 0 एंड y इक्वल 5। अगर मैं आपको बोलना शुरू करूं कि y की दो वैल्यूज आ रहे हैं तो क्या आप बोलोगे? what is the? तो टेंशन 2m1 m2 by m1 plus m2 है क्या? सर 2m1 m2 g by m1 plus m2 आ रहा है। हाँ सर, g भी है सर, सॉरी। पलाश बताओ। यस सर, मैं देखता हूँ सर, वो कैलकुलेशन किधर गलत होगा। No, yes, it is simply a simultaneous equation where this guy is unknown, this guy is unknown, this guy is unknown, this guy is unknown. M1, M2 और G तो हमें पता है, unknowns नहीं है वो equation, simultaneous equation है ये. It is something like x minus 3 is equal to 2y
and the second equation like 5 minus x is equal to cy, something like this. How many values of x and y you will get? एक ही आएंगी ना? 1 each. हाँ Yes, sir. यस। हाँ भाई, सदगुण बताया नहीं तूने क्या आएगा इसका आंसर? सर -20 माइनस क्या होता है? 20 न्यूटन टू द -20 I cap. अरे आई कैप मैंने कहाँ डिफाइन किया? आई कैप मैंने कहाँ डिफाइन 20 Newton to the left. किया? लेफ्ट राइट मैंने कहाँ डिफाइन किया? 20 न्यूटन टू द लार्जेस्ट फोर्स। लो अब बताओ। 20 न्यूटन towards the largest force। Towards 50 Newton. यही आंसर होएगा ना, 20 न्यूटन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ 50 न्यूटन। Yes, sir. Yes sir। यहाँ पे भी तो मैंने वही काम किया है। T माइनस m1g इज इक्वल टू m1 है। इसमें प्लस माइनस कहाँ से आ गया? सेकंड जो M2 इसमें हमने एस्केलेशन नेगेटिव लिया है ना, एक्सेलरेशन होता है, एस्केलेशन नहीं होता है, पहली चीज। हाँ, और और M2 दूसरी चीज नेगेटिव क्या होता है भाई वेदांत? जब मैंने एरो बनाई हुई है, 10 बार बोला है ना मैंने, जब एरो बनाई हुई है तो पॉजिटिव नेगेटिव आई कैप जे कैप का मतलब नहीं होता, बोला हुआ है ना। हाँ, तो आपने सेकंड इक्वेशन फिर आपने कैसे लिया? सेकंड इक्वेशन M2 के लिए कैसे बनाया फिर? एक्सेलरेशन m2 किधर है बताइए? नीचे की तरफ है। तो नीचे वाली फोर्स बड़ी होनी चाहिए कि ऊपर वाली फोर्स बड़ी होनी चाहिए? नीचे वाली फोर्स बड़ी होनी चाहिए। तो नीचे वाली फोर्स माइनस ऊपर वाली फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। Can you scroll down? बताओ भाई, टेंशन। सर मैंने सर जैसे आपने ये लिखा, मैंने लिखा था m1g minus t equal to minus m1a and m2g minus t equal to m2 positive a। वैसे भी चले भाई अब तू मुझसे पूछे क्या मैं अपने हाथ से चल सकता हूं, तो बिल्कुल चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता? कुछ लोग चलते भी हैं, पैर ऊपर कर लेते हैं, हाथ नीचे, और हाथ से चलते हैं। देखा है कि नहीं तूने कभी? लिखा नहीं है। नहीं देखा है? यूट्यूब पे देखना, वॉकिंग ठीक है अपसाइड डाउन। कैन यू डू इट? ऑफ कोर्स यू कैन। डू यू डू इट? ऑफ कोर्स यू डोंट। So can you multiply the above equation by -1? Of course you can. You can multiply it by minus 10,000 as well. You can write the equation as 10,000 m1g minus 10,000 t is equal to minus 10,000 m1a. But do you do it? No, you don't. So, sir, I'm not multiplying by myself. Sir, I'm taking the acceleration one way to be positive way and the other way to be negative। वही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर तेरे को उल्टा चलना है तो चलना भाई, उसमें कोई दिक्कत, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर बस सही आना चाहिए, टेस्ट में मार्क्स आने चाहिए, बाकी और क्या लेना देना। अच्छा ठीक है। श्रीहरन, अगर श्रीहरन एंड ये किसका आंसर है पता ही नहीं चल रहा। विश्वदीप, श्रीहरन, if I give you these two simultaneous equations, right, जैसे मैंने अभी लिखा था, x, अगर मैं लिख लूं, x minus 3 is equal to 2y, 5 minus x is equal to 3y, right? So you are telling, please solve this equation. ठीक है ना? Follow me carefully. Now, I say that the answer to this is x is equal to 4 and y is equal to x minus 3 by 2. Would this be a correct answer according to you? Would this be okay? If I find x equal to 4, then would y be expressed as x minus 3 by 2 or something else? 1 by उससे नहीं पूछ रहा हूं मैं। विश्वदीप, नहीं सर।
हम लोग को फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आपने जो आंसर दिया है श्रीहरन, देखो उसमें टी का आंसर जो है ना, दैट कंटेन्स ए, which it was unknown, right? Which was unknown to start with. So the answer of T should be only in terms of M1, M2 and G. मैंने भी No भेजा। other term should appear. सर ये जो आपने दो इक्वेशन बनाए, ये इरिस्पेक्टिव आपने साइंस नहीं लिया ना? ये जो आपने दो इक्वेशन जो ऊपर जो बनाए t माइनस m1, इसमें आपने साइंस का कुछ काम नहीं लेगा, अपने वेक्टर्स के हिसाब से पागल नहीं हो गया है क्या? फिर से अपना दिमाग ऑफ कर लिया क्या तूने? अभी तो तेरे को एक्सप्लेन किया ना कि जहां पे ए अज्यूम्ड है वहां का हम वो लेते हैं। अभी तो तेरे को बताया ना, जहां पे ए अज्यूम्ड है वहां का बड़ा फोर्स लेंगे माइनस दूसरा वाला फोर्स। क्या डायरेक्शन कर रहा है? क्या नॉर्थ साउथ लिखूं क्या मैं यहाँ पे? नहीं वाई कैप जे के उस सब से नहीं चल रहा ना, बस नॉर्मल लाइक आप डायरेक्शन कुछ नहीं ले रहे हो ना, लाइक बेसिकली आप ए और वो से भी ले रहे हो ना। पता नहीं क्या बोल रहा है भाई वेदांत। तो ये माइनस क्यों लिया है मैंने यार, ये समझ में नहीं आया। वेदांत बताएगा ये माइनस क्यों लिया है? सर सब्ट्रैक्ट करो ना नीचे जो फोर्स। क्यों सब्ट्रैक्ट किया भाई मैंने? कहां से मेरे मन में आ गया कि ये सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? कैसे मन में आया मुझे नहीं समझ में, कैसे मन में आया? ऐड मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उल्टे डायरेक्शन में दोनों। अभी तो बोल रहा है डायरेक्शन लिया ही नहीं आपने, अब मेरे को बोल रहा है उल्टे डायरेक्शन में, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया। तो चूज कर लेना अपना स्टेटमेंट, क्या तेरे को चाहिए? या तो मैंने डायरेक्शन नहीं लिया या मैंने लिया है। अगर मैंने डायरेक्शन नहीं लिया तो मैं ये दोनों को ऐड कर देता। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया है तो क्यों किया है? उल्टे डायरेक्शन में इसीलिए तो किया है ना। क्या तुम लोग पॉजिटिव नेगेटिव के पीछे पड़े हो भाई? टेंशन बताओ क्या होएगा? हाँ बिल्कुल सही सर है। मेरे को आया 2m1m2g/m1+m2। हाँ तो इस केस में हम लिखेंगे t minus m1g is equal to m1a, m2g minus t is equal to m2a. Now instead of adding, I am going to subtract. If I do that, I'll get m2g plus m1g is equal to क्या आएगा? क्या सब्ट्रैक्ट किया मैंने इधर से इधर? m2 minus m1 into a। नहीं, अबे मैं क्या कर रहा हूँ सर 2t माइनस m1g माइनस m2g इक्वल्स टू m1a अरे माइनस m2a। रुको यार, वेदांत ने जो है उड़ा दिया मेरा दिमाग। बट वेदांत चलो देखो, what I am going to do is I am going to multiply this by m2 and I am going to multiply this by m1 and now I am going to subtract. If I do that, on the right hand side I'll get 0, on the left hand side I'll get m2t minus m1 m2g minus m1 m2g minus m1t, right? ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस के साथ। तो I'll get t into m1 plus m2 is equal to 2m1 m2g, t is equal to 2m1 m2g upon m1 plus m2। ये भी याद रखना है, यह आया समझ में? ये भी याद रखना है। आ गया। वेदांत ये वर्कआउट किया कि नहीं तूने? हाँ सर क्या? क्या हुआ? मैं तो चिल्लाता ही रहता हूं, तू क्यों अपना हाँ मुंह सर क्या? बंद कर? हाँ तो ठीक है। अब वन फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स applied by the ceiling or the support on the pulley of Atwood machine? सर टेंशन अपवर्ड्स।
क्या मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं पहले से वी शुड बी क्लियर अबाउट दिस. I am asking what is the force here? 2t Very upward. good. So this will be equal to 2t. 2t. 4m1 m2g on m1 plus m2. And these are the three things that we need to know about the simple Atwood machine. I would suggest that for all those who are having problems with direction, okay, मैंने काम नहीं किया क्योंकि मेरे को लगता है कि एक एक्सिस के अलॉन्ग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आई डोंट नो मे बी यू आर राइट. तो मेरे को इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मेरे को नहीं लगता है कि मैंने कुछ डिफाइन किया डायरेक्शन. बट इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम विद दैट, डोंट वरी, यू टेक द अपवर्ड डायरेक्शन एज प्लस j cap and then you do everything. आंसर भैया है. तीन चीजें याद रखनी है हमें. पहला, एटवुड में एक्सेलरेशन क्या होता है? डिफरेंस ऑफ मास इनटू g अपॉन सम ऑफ मास. दूसरा, टेंशन क्या होता है? Twice product of masses g upon sum of masses. And force by support on the Atwood machine क्या होता है? That is 4 times product of masses into g upon sum of masses. Why T2 is applied upwards? Well, if you apply T2 downwards, then the whole system will simply accelerate downwards. No? Sir, can you explain the force by support again? ये रहा, ये जो मैंने बनाया है, ये पुली मासलेस है ना, तो मासलेस पुली. अच्छा, ओके, यस सर. नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो 2t ऊपर होना चाहिए, t और t नीचे. चलो ठीक है. I'll stop here and you don't have to do. I don't. If you have finished lecture 2, then you can move on to lecture 3. I think. Lecture 3. Okay, sir. And also start with HCV now, please. HCV के पहले 15-20 सवाल I think you should be able to do now. Sir, HCV, that exercise, no? Exercise, yes, exercise. First 20 questions. Okay, sir. Okay, sir. ठीक है ना? We will be following this scheme. So if you find anything which is at number 5, number 6, and we have not reached, don't worry about it. Skip that question. We will come back to it. तो सिंपल पुली मास सिस्टम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट सर, HCV के एक्सरसाइज के जहां तक होते हैं वो करने हैं ना? हाँ, रफली 15 से 20 तक हो जाने चाहिए. ओके सर. और सिंपल पुली मास सिस्टम हमारा खत्म नहीं हुआ है. नेक्स्ट क्लास में आई विल कंटिन्यू विद सिंपल पुली मास सिस्टम एंड देन आई विल ट्राई टू कंप्लीट द वेज प्रॉब्लम्स एज वेल, बिकॉज वेज वाला ज्यादा लंबा नहीं. And then pulleys and wedges we'll see when they come together, and then we'll move on to the complicated systems. चलो ठीक है. सर, बाय सर. थैंक यू सर. सर ये जो नीचे हमने पुली बनाया है, ये तो हमने लाइक लॉजिकली दो इक्वेशंस अगर मैं आई कैप जे कैप उससे भी करता हूँ तो भी आंसर आ जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल आएगा. जैसे आपने सेकंड वाले के m2g, तो आपने m2g बढ़ा है इसलिए आपने इसको पॉजिटिव लिया, माइनस आपने t1 जो उसको सब्ट्रैक्ट. लेकिन अगर मैं डायरेक्शन के हिसाब से सोचता हूँ तभी तो वही आंसर आएगा ना? वही आएगा. अलग कैसे आएगा? मैंने बस बिना उसके कर दिया. सर, अगर पुली में मास हुआ और वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स बाय, हाँ, पुली में मास हुआ तो फिर ये लफड़ा हो जाएगा. फिर कैसे करेंगे? सर वो मास वाला पुली वो सब कब हम पढ़ेंगे? वो 3 चैप्टर के बाद, 4 चैप्टर. ओके सर. चलो बाय बाय. थैंक यू सर. बाय. थैंक यू सर.